اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف کے مطابق مسلمانوں نے ایک مرتبہ پھر ہندوستان کو فتح کرنا ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کو غزوہ ہند کہا گیا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ قوم، وہ جماعت، وہ فوج اور وہ ملک پاکستان جس کو اللہ نے غزوہ ہند کے لیے منتخب کیا ہے۔ اب چاہے کوئی اس حدیث شریف کو مانے یا نہ مانے، جو اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے وہ ہو کے رہے گی۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم ہندوستان کے پنڈتوں، شودروں، دلتوں اور وہاں رہنے والی اقلیتوں کو پہلے اسلام کی دعوت دینا چاہتے ہیں۔ تمام ہندوؤں کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کی خوشخبری اور بشارت دی گئی ہے۔ یہ ہندو پنڈت اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور آنے والے دور میں حضور کی حکومت نے دنیا میں قائم ہونا ہے۔ اس کے باوجود یہودیوں کی طرح یہ سچ کو چھپاتے ہیں۔ قرآن پاک میں یہودیوں کے بارے میں واضح فرمایا گیا ہے کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اور یہی معاملہ ہندوستان کے پنڈتوں کا بھی ہے، جن کی اپنی کتابوں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں بیان کر دی گئی ہیں، لیکن یہ اپنی ہندی قوم سے، اپنے شودروں سے، اپنے دلتوں سے اس حقیقت کو چھپایا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت مبارکہ پر ہم آج حجت تمام کرنا چاہتے ہیں تمام ہندوستان پر۔ ہم انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، ہم انہیں اللہ کے رسول کی طرف بلاتے ہیں، ہم ان کو وہ باتیں یاد کراتے ہیں جو ان کی اپنی کتابوں میں، تاکہ دنیا میں اور آخرت میں اللہ کے مقابلے پر اگر وہ آنے کا فیصلہ کریں تو پھر ان کو شکایت نہیں ہونی چاہیے جب اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں ہمارے ہاتھوں رسوا کرے۔ ہم سچ کی دعوت ان کے پاس لے کر آئیں، اور انشاءاللہ وہ تمام ہندو جن میں اللہ نے کوئی خیر رکھی ہے، جو حق کو تلاش کر رہے ہیں، جو گمراہ ہو چکے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کے بڑوں نے، ان کے پنڈتوں نے ان کو حق نہیں بتایا، اگر اللہ کی مرضی ہوگی تو وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ اگر اللہ نے ان کے نصیب میں گمراہی اور ضلالت لکھ دی ہے تو پھر انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں حق و باطل کا فیصلہ میدان جنگ میں ہوگا۔ یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو پاکستان کی مخالفت کرے گا تباہ کر دیا جائے گا۔ یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے گا دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا کیا جائے گا۔ ہندوستان کے پنڈتوں اور ہندوؤں کو آج ہم اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ ہمارے اس بیان کے بعد ایک فقیر یہ پیغام آپ تک پہنچائے گا۔ ہم پوری دنیا کے مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ جو اس پیغام کو سن رہا ہے ہندوستان کے ہندوؤں اور پنڈتوں تک اس پیغام کو پہنچا دیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں ان پر یہ حجت تمام کر دیں کہ اس کے بعد اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے لیے بہتری ہے، اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتا پھر اس کے نصیب میں بدنصیبی اور ذلت لکھ دی گئی ہے اور اس کا فیصلہ مسلمانوں کی تلواریں کریں گی۔ آئیے اب اس پیغام کو سنتے ہیں کہ جو ہندوؤں کی اپنی کتابوں سے دلیل اور ثبوت پیش کرتے ہوئے ہندوؤں کو اسلام کی دعوت دیتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے میں ان کے لیے بہتری ہے، ورنہ خود ان کی اپنی کتابوں میں ان ہندوؤں کے لیے، ان پنڈتوں کے لیے بدنصیب بدترین عذاب کی خوشخبری دی گئی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی مخالفت کریں گے۔ خود ہندوؤں کی کتابوں کے حوالے سے ایک فقیر یہ اذان دیتا ہے اور یہ حجت تمام کی جاتی ہے ہندوستان کے ہندوؤں اور پنڈتوں کے اوپر۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آج ہم اس حجت کو تمام کرتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم انا نحن نصلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد المعلی شان ماہی البطلان حاشر الانسان رحمت للعالمین سید الانبیاء والمرسلین سراج الاولین والآخرین
حزبہ حزب اللہ دینہ دین اللہ قبلتہ بیت اللہ ومن یطیعہ فقد اطاع اللہ فی مرتبۃ الغیب هو اللہ کلامہ کلام اللہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی جامع الکلم کلامہ البراق والرفرف مرکبہ الی ورع الوراء سفرہ مقام الاحدیت مقامہ ہوا کافۃ للناس امتہ خرجت للناس کتابہ بیان للناس رسول الی الناس جمیعا اصحابہ مسیل الانبیاء الارض کلہا لہ مصلی جعل اللہ لہ مال الغنیمت حلالا طیبا خاتم النبیین رسول امین شفیع المذنبین شفیع المذنبین شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واہلہ واہل بیتہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ಶುಭ ಶೋಭನ ಮುಹೂರ್ತಿಯೇ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಮಹಾವಿಷ್ಣುರಾಜ್ಞಾಯ ಪ್ರಾವರ್ತಮಾನಸ್ಯ ಆದ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಾರಾಬ್ಧೆ ಪಾರ್ಥಿವಕಲ್ಪ ಆನಂದಕಲ್ಪ ಕೂರ್ಮಕಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಕಲ್ಪ ವರಹಕಲ್ಪ ಶ್ವೇತವರಹಕಲ್ಪೆ ಪ್ರಳಯಕಲ್ಪ ಪಾದಮಕಲ್ಪ ಸಾವಿತ್ರಿಕಲ್ಪ ನವಕಲ್ಪಾನಾಂ ಮಧ್ಯೆ ಷಷ್ಠಮಿ ಶ್ವೇತವರಹಕಲ್ಪೆ ಸ್ವಯಂಭವ ಸ್ವರೋಚಷ ಉತ್ತಮತಾಂ ಸಾರವತ ಚಾಕ್ಷುಷ ವೈವಸ್ವತ सूर्याग्नि ब्रह्मा रुद्रादक्षा सावर्णिका रौच्या भौच्या चतुर्दश मन्मन्त्राणां मध्ये सप्तमी वैवस्वत मन्वन्तरे यधुष्टरा विकर्मारका शालिवाहन विद्याभिनन्दन नागार्जुनकुलषट्चकर्णां मध्ये तृतीया शालिवाहन शके कृता त्रेता द्वापारान्ते द्वात्रेण षट्सहस्राणि वद चतुर्लक्षाब्दे कलियुगे पञ्चसहस्रादिवर्षे प्रथम मासे प्रथम मक्षे प्रथमे हनि त्रयोदश घटिका द्विजत वर्णन सप्त घटिका प्रथम प्राणायाम काले लक्ष योजन विस्तीर्णम जम्बूदीपे अतुला विमला सत्कुल धवत कल्पतुरुक्षाय विन्यस्ता दैदीप्यमान रत्न सिंहासनस्यो प्रस्थिति यंत्रारासे चतुर्दशा वर्णवरंतः सहस्र योजना विस्तार से पूर्व प्रोथा शेखरी कुर्ता ध्वज पताका योत योजनांता कदम वृक्षादीपी तस्या मंदारस्या प्रांते इंद्रा कसेरो तांबुर्गा बस्ती नागा सोमया गांधर्वा चारिणी भारतीता नववर्षात्मिक मध्ये भरतवर्षे भारता केम्पुषा लावर्ता क्रोभद्रा अस्मिका रमणिका मंदारनिका केतु मलाख्याद्य नवखंड मंडल मध्ये भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे श्रीशैल ईशान्य प्रदेशे कृष्णा गोदावरी मध्यदेशे श्रीमदादि विष्णु मश्चा कूर्मा वरहा नारसिंहा वामना भार्गव राघव कृष्ण बौद्ध अवतार नंतरे कल्कि अवतार निवासी गृह समस्त देवता हरिहरो उभ्यात्मिका स्वरूप जगद्गुरु चरण सन्निधो आस्मिन् वर्तमान व्यवहारिक चंद्रमानेन प्रभु आदि षष्टि संवत्सराणां मध्ये आस्मिन् संवत्सरे शुभ नक्षत्रे शुभ युगे शुभ कर्णा एवं गुणा विशेषण विशिष्टायां शुभतिथो ममोपात्थ दुरितक्षय द्वारा श्रीमदादि नारायण विराट विश्वरूप परब्रह्मं प्रत्यार्थः प्रतः मध्यानिका सायं संध्या उपासिषे नमः नमः नमः. ओम शांति शांति शांति. ऐ भारतवर्ष के निवासियों, सज्जनों, ये संत मुनीर शाह जो फ़कीर आपके सामने प्रेम की भावनाओं का पैगाम लिए हुए आया है, इसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये युग जो है जिसमें तुम रहते हो यह कलयुग है. कलो पंचसहस्रान्ते जायते वर्ण शंकर. जब कलयुग के जब 5000 साल बीत जाएंगे तो वर्ण शंकर हो जाएगा. आपको मालूम है कि वर्ण शंकर हो चुका है. ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रहा, क्षत्रिय क्षत्रिय नहीं रहा, वैश्य वैश्य नहीं रहा, शूद्र शूद्र नहीं रहा. शूद्र का काम ब्राह्मण कर रहा है, वैश्य का काम ब्राह्मण कर रहा है, क्षत्रिय का काम ब्राह्मण कर रहा है. तो पता चला कि ब्राह्मणों को जो काम था, यजन याजन अध्ययन अध्यापन सब खत्म हो गया है. सब आज जो है दुशिक्षचा
क्रिया शून्यो निकृषा दीर्घगो पुनः चतवारा कर्म चंडाल जाति चंडाल उत्तमहा। ये सब कर्म चंडाल हो गए हैं, जाति चंडाल है उससे उत्तम हो गया है। इस ऐसे ज़माने में इस युग के अधिपति की ज़रूरत है जिसको पहचानना है। कलयुग में कल की अवतार की जो ज़रूरत है, जिसका इंतज़ार तुम दुनिया कर रही है। ये कल की अवतार कौन है? वो एक ही ज़ात हस्ती है जिसको वेद प्रकाश उपाध्याय, रीडर ऑफ द संस्कृत पंजाब यूनिवर्सिटी, उन्होंने तुम्हें यह खुशखबरी सुनाई कि भारत निवासियों, हिंदुस्तान के रहने वालों, जिस कल की अवतार का तुम इंतज़ार कर रहे हो वो जगत गुरु हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले अरब की सरजमीन में पैदा हो चुके हैं। हालांकि तुम्हारे पास इंतज़ार है, वो घोड़े पर बैठकर तलवार लेके आएंगे। सजल जल दे हो वात वे गई कबाहा कर धुत करवा लहा सर्वलोक कपालहा कलिकुल वनहंत सत्य धर्म प्रणेता कले तो कुशलवाहा कल की रूपहा सबूपहा। वो जगत व्यापी जगत गुरम जो है वो घोड़े पर बैठकर तलवार लेके आएंगे। ये दौर टैंकों का दौर है, मिसाइल का, स्पेस के निज़ाम का दौर है। 1400 साल पहले अरब की सरजमीन पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े पर बैठकर तलवार लेके आ गए। दुष्टों का संहार किया, श्रेष्ठों का परिपालन किया, दीन को तकमील किया। अलियौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। वेद प्रकाश ने तुम्हें अपनी किताब में यह खुशखबरी सुनाई कि हिंदुओं, अगर ईसाई फारे खलीद को माने या ना माने, हम भारत के रहने वाले मोहम्मद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कल की अवतार अवश्य मान लें तो एक बहुत बड़ा समाज हो जाएगा। मक्का और मदीना हमारा हो जाएगा, सारे दुनिया के मुसलमान हमारे भाई बन जाएंगे। जब हो जाएगा तो दुनिया के अंदर शांति स्थापन होगी, अमन कायम हो जाएगा। हम ये फुकरा ये तुम्हें दावत देते हैं, उस वेद प्रकाश के पैगाम को तुमने कबूल नहीं किया। आज जो है मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम कर रहे हो। बाबरी मस्जिद के नाम से हिंदुस्तान में तुमने फसाद किया। हालांकि रामचंद्र जी खुद फरमाते हैं, प्रथमम तारकम चैव द्वितीयम दंडमुच्यते तृतीयम कुंडलाकारम चतुर्थम अर्धचंद्रकम पंचमम बिंदु संयुक्तम ओम मित्तिज्योतिरूपकम अष्टांगे चतुष्पादम त्रिस्थानम पंचदेवतम ओम मित्ते जायनाति ब्राह्मणो न भवेस्यहि खेचरी भूचरी सहचरी षणमुखी शांभवी। यानी एक दफ़ा हनुमान ने राम से सवाल किया, ऐ राघो, मैं तेरे साथ होकर के तेरे धर्म को स्थापन करने के लिए लश्कर लेकर के रावण का मुकाबला किया। मैं उस परमेश्वर से मुलाकात करना चाहता हूँ जो अविनाशी है। अगर मैं उसका स्टैचू बना लूँ लोहे का तो आग उसको जला करके पानी कर देती है। मैं आग की पूजा करूँ तो बारिश बरस करके उसको बिल्कुल ठंडा कर देता है। अगर पानी की पूजा करूं तो सूरज की शुआओं से पानी वेपर बन के उड़ जाता है। यह दृष्टम तद नष्टम, जो कुछ देखता हूं वो सब खत्म होने वाला है। जो अविनाशी है, जो हय्यु कय्यूम ज़ात है, उससे मैं कैसे मुलाकात कर सकता हूं? तो रामचंद्र जी कहा कि मेरे पास वो उसका कोई ये नहीं है, बल्कि जगत गुरु आने वाले हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी होने वाली है। वो मक्के की सरजमीन में आएंगे। वो शंबल ग्राहम मुख्य से ब्राह्मणस्या, ब्राह्मणों के आला खानदान में मक्के के मुतवल्ली के घर में पैदा होंगे। उनकी प्रार्थना जो होगी, जिसके करने से वो अल्लाह ताला से मुलाकात होती है, हो जाती है। हर वो इंसान चाहे मशरिक़ का रहने वाला हो चाहे मगरिब का रहने वाला हो, उस प्रार्थना करने से अल्लाह से मुलाकात होती है। अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, उसमें क़याम है, रुकू है, क़ायदा है, सजदा है। इसी को रामचंद्र ने कहा, प्रथमम तारकम चैवा द्वितीयम दंडमुच्यते तृतीयम कुंडलाकारम चतुर्थम अर्धचंद्रकम पंचमम बिंदु संयुक्तम ओम मित्तिज्योतिरूपकम अष्टांगे चतुष्पादम त्रिस्थानम पंचदेवतम ओम मित्ति जायनाति ब्राह्मणो न भवेस्यहि खेचरी भूचरी सहचरी षणमुखी शांभवी। उन्होंने बताया कि क़याम, रुकू, कायदा, सजदा जिस इबादत में है वो जगत गुरु मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रार्थना है, जिसको पढ़ करके इंसान अल्लाह के दरबार में अल्लाह से मुलाकात कर सकता है। सलातो मिराजुल मोमिनीन लिखा है, ब्रह्मा कुर्त शिव सहस्र नाम सुमृत्युंजय सूक्ष्म तनुर जगत व्यापी जगत गुरम। रहमानी सिफतों के हामिल, रहीमी औसाफ के मजहर, रहमानी ताकतों के हामिल, रहीमी सिफतों से मामूर, मालिकी औसाफ के मजहर, दायमी हयात वाले, लतीफ़ जिस्म के साथ सारे आलम में भरे हुए जगत गुरु हैं। यानी जगत गुरु जिनका जिक्र तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है, और रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद है। रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहीम बन करके तबलीग करे, रहमान बन के तबलीग करे, रहीम बन के अपने साथियों को हिजरत करवाई, रंग में रंगीन किया, मालिक बन करके मक्के में तशरीफ़ लाए। और जो है आपने वो लहुल मुल्क और लहुल हम्द का नज़ारा दुनिया को दिखाया। यही तुम्हारी वेदों में लिखा हुआ है
क्या ब्रह्मा कुर्त शिव सहस्रनाम सुमृत्युंजय सूक्ष्मतन जगत्व्यापि जगद्गुरुम विष्णु वशस्पतम देवम दुष्ट दुराचार मर्दनम सुमति परमानंदम कल क्या वंदे जगद्गुरुम। उनके वालिद का नाम विष्णु अब्दुल्ला होगा, वालदा का नाम सुमति आमिना होगा। वो कल क्या वंदे यानी माहियल बुतलान वलस्लाम होंगे, जगत गुरु यानी सरवर आलम होंगे। और आप जो है दुनिया में जब तशरीफ़ लाएंगे आपको मेराज नसीब होगी, आप बुर्राक पे सवारी करेंगे जिसको कहा काम धेनु कल की वाहन अम्बू। ये एलोरा एजेंटा के गारों में 16 नंबर के गार के अंदर जो है एक तस्वीर लगी हुई है बुर्राक की और लिखा हुआ है ये कल की अवतार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी होगी। जितने अवतार हिंदुस्तान में आए मस्चा कोरमा वरहा नारतिम्मा वामना भार्गव राघवा कृष्णा बौद्धा, इन अवतारों की सवारियाँ भी वहाँ पे मौजूद हैं एलोरा एजेंटा के गार में। लेकिन उनकी तस्वीरें जो है अपनी सवारियों पे सवार मौजूद है, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई तस्वीर नहीं है। लिखा हुआ जगत गुरु की सवारी जो है आप जब मेराज में तशरीफ़ ले आएंगे पहले आपको बुराक मिलेगी, उसके बाद रफ की सवारी होगी। पहले बुराक जो है काम धेनु कल की वाहन अम्बू, जिसको मुसलमान बुराक कहते हैं और तुम्हारे पास कामधेनु कहा गया है। तो देखो आज तुमको समझने की बात है, ज़बान का फ़र्क है। जगत कहते हैं आलम को, गुरु कहते हैं सरवर को। सरवर आलम मुसलमान कह रहे हैं, तुम उसको जगत गुरु कह रहे हैं। जैसे पानी है, पानी को आप कहा गया, माँ कहा गया, वाटर कहा गया, जल कहा गया, एक ही चीज़ है जिसको कई नामों से याद किया गया। ऐसे जगत गुरु तुम कहते हो कि इंतज़ार कर रहे हो, वो 14 साल पहले सरकार तशरीफ़ ला चुके हैं, उन्होंने हक़ का पैगाम लाया। या अहलिल किताब तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नाबुदा इल्लल्लाह। अहले किताब आओ एक कलमे की तरफ जो तुम में और हम में मुश्तरक है, वो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। आप इंसानियत को एक वजूद के ज़ात बाबरकत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की ज़ात पर एक करने के लिए तशरीफ़ लाए और कहा कि तमाम इंसान जो है उसी ज़ात पर एक हो सकते हैं। इसीलिए आपका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ऐ हिंदुस्तान के ब्राह्मणों, जब कोई तुम्हारे घर में बुजुर्ग है या बच्चा है या कोई भी हो आखिरी दम लेता है तो उस पर तुम पानी डालते हो, 2 खतरे पानी डालते हो और पढ़ते हो हा हा हु ही। ये क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। ला इलाहा हरणे पापम इल्लल्लाहु परमपदम जन्म वैकुंठ प्राप्नोति जपे नामे मोहम्मदम। तुम तो पढ़ते हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि जिसका इंतज़ार कर रहे हो, जिसका कलमा पढ़ रहे हो कि वजूद क्या है। हम वो तुम्हें उस अंधेरे से निकाल के रोशनी की तरफ लाना चाहते हैं। गुरु के माने क्या है? अंधकार से निकाल के प्रकाश में लाए। तो हम वो अल्लाह वाले हैं जो तुम्हारे इस अंधेरे से निकाल करके रोशनी में ला रहे हैं। अंधेरे में टकराव हो जाता है, अंधेरे में टक्कर होती है, अंधेरे में 2 इंसान लड़ते हैं। तो आज जंगें जो हो रही हैं सिर्फ अंधेरे की वजह से हैं। तुम्हारे दिलों में अंधेरा है, तुम्हारे दिलों में बॉक्स की आग लगी हुई है। जो अदावतें हैं, निफरतें हैं, इस निफरतों को दूर करके एक करना चाहते हैं। वो एक होने के लिए पंच शांति मार्ग है। पंच एको जगदीश्वरा एको जगत गुरु सर्वावतार सत्या सर्वधर्म ग्रंथ सत्या समता सम्मेल प्रार्थना। ये सम्मेल प्रार्थना जिसका जिक्र मैंने आपको बताया है, श्री राम तत्वबोधामृत की जो उनकी किताब है उसके अंदर जो श्लोक मैंने पढ़ा आपके पास, प्रथमम तारकम चैवा द्वितीयम दंडमुच्यते तृतीयम कुंडलाकारम, ये सम्मेल प्रार्थना है। तमाम नस्ल इंसानी जो है कायनात जो बनी है, जिसको कुरान करीम कहता है सनूरिम आयतुना फिल आफाक़ व फ़ी अनफुसिहिम अफ़ला तुबसिरून। जो कायनात सारी की सारी एक इंसान के अंदर समाई हुई है। एक इंसान का कत्ल, इंसान की एक हलाक करना जो है तमाम आलम को ख़त्म करने के बराबर है। तमाम कायनात एक इंसान के अंदर है। तुम्हारे पास भी लिखा है आत्मा संभूतदाकाशम आकाशाद वायु वायुराग्नि अग्निरापः तद्भवे पृथ्वी पृथ्वी औषधम औषधादान्नम मन्नदे ऋतसः ऋतसे पुरुषः। यानी इंसान कायनात का फल बन के आया है, ये कायनात का सरदार है। इसको जो है उस नूर की ज़रूरत चाहिए जिस नूर से कायनात बनी है। वो नूर क्या है? अध्यायते तेज भूतानी तस्माद अन्नम तदुच्यते अहम अन्नम मोहम्मन्नम अहम मन्नादो मोहम्मन्नाद। जिस नूर से कायनात बनी वो अजली वो अब्दी है, वो नूर अहमद नूर मोहम्मद
नूर महमूद है जिससे कायनात बनी हुई है, तुम्हारी वेदों में लिखा हुआ है। उस नूर की तरफ तुमको आना है, उस नूर में आने से दुनिया में नजात है, नफरतें ख़त्म हो जाती हैं, अदावतें ख़त्म हो जाती हैं। जब सरकार तशरीफ़ लाए तो अरब के अतराफ़ के जो यहूदी थे, अरब के अतराफ़ में जो नसारा थे, अरब के अतराफ़ में जो मजूसी थे, अरब के अतराफ़ में जो आतिश परस्त थे, वो आपका कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, सब एक ही हो गए, एक ही सफ़ में खड़े हो गए। महमूद व अयाज़, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। बंदा वो साहिब मोहताज व गनी एक हुए, तेरे सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे के वसीले से आपने क्या किया? यहूदी को, ब्राह्मण और शूद्र को, क्षत्रिय और वैश्य को एक कर दिया। आज हम हिंदुस्तान के रहने वाले ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को दावत देते हैं कि आओ, जो तुम्हारी वेदों में लिखा हुआ है, उपनिषदों में लिखा हुआ है, तुम्हारी गीताओं में लिखा हुआ है, जिसको कबीरदास कहता है, स्वरदास कहता है, कलयुग में कल की अवतार, जीवन नहीं त्रिलोक मंडाना, ज्योति स्वरूप निरंजन नहीं पद पाना। यानी वो कल की अवतार जो है इस कलयुग में आ चुके हैं, जो तुम्हारे पास कल पंचशास्त्रांत जायत वर्ण शंकर वर्ण शंकर हो गया है। तो धर्म कायम करने के लिए, दीन को दोबारा कायम करने के लिए वो एक ही वजूद है, क्योंकि तमाम आलम एक मरकज़ पे आ गया है, ग्लोबल विलेज बन गई है। कोई एक ब्राह्मणों का धर्म बाकी नहीं रहेगा, शूद्रों का कोई धर्म नहीं आएगा, बल्कि तमाम नस्ल इंसानियों को एक करने वाला एक ही वजूद होगा। इसीलिए कहा गया ब्रह्मा कुर्त शिव सहस्र नाम सुमृत्युंजय सूक्ष्म तन जगत व्यापी जगत गुरम, वो रहमतुल्लिल आलमीन का वजूद होगा जो तमाम इंसानों को एक कर देगा। आज उस वजूद की तरफ तुम सबको आना है। ये पैगाम हमारी तरफ से तुमको है, मोहब्बत का है, प्रेम का है। इस पैगाम को अगर कबूल कर लोगे, भाई बन जाओगे, नफरतें ख़त्म हो जाएंगी, अदावतें ख़त्म हो जाएगी, और तुमको जो है हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे की बरकत से आप फरमाते हैं, अपने कलमे के वसीले से बनी आदम को अर्श पर बैठने वाले से मिलाकर छोड़ा। आज अर्श पर बैठने वाले से मुलाकात करना है तो इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे को इख्तियार करना पड़ेगा। हमारी तरफ से तुम्हें दावत है, कबूल फरमाओ। इसी में हिंदुस्तान की नजात है। और तुम्हारा ये समझते हो कि तुम्हारे पास बड़े एटम बम हैं, बैलिस्टिक मिसाइल हैं, अग्नि, नाग, पृथ्वी, आकाश है, तो साफ लिखा हुआ है तुम्हारे पास, इससे कामयाबी नहीं है। क्योंकि पंचभूत आत्मिकम विश्वम मरीचि जलसंदिभम कस्याप्य हो नमस्कुरिया महम एको निरंजना। ये पंचभूत से ये जो बनाए हुए ये एटमिक हथियार, ये बैलिस्टिक मिसाइल्स, ये अग्नि, नाग, पृथ्वी, ये शराब हैं। शराब को इंसान समझता है कि पानी है, वो प्यासा मर जाएगा, कुछ बाकी नहीं रहेगा, दीन कायम हो जाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। ये दीन गलबे के लिए आया है, इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ये सत्युग आरंभ हो गया है। तुमने अगस्त 1943 में जब देखा यदा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा तुष्य बृहस्पति एक रासो समस्यांति तदा भवति तत्कुर्तम, यानी कुर्तायुग आरंभ हो गया जब चंद्र, सूर्य और बृहस्पति एक राशि में आ गए। तुमने सत्युग मनाया पूरे हिंदुस्तान के अंदर। सत्युग में तो अखलाक का मंबा खड़ा होता है, अखलाक कायम करने वाला होता है। कुल जाल क़ुज़ाक़ल बातिल बातिल का नज़ो का नज़ा दिखाने वाला होता है। तुमने उसको नहीं पहचाना, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान से उसकी ठोकरों के नतीजे में जो है ब्रिटिश चला गया, जिसकी ठोकर में रशिया की ताकतें ख़त्म हो रही हैं, जिसकी ठोकर के अंदर सारा यूरोप जो है आज परेशान है, हैरान और परेशान है, जिसकी मईशत ख़त्म हो रही है, टेक्नोलॉजी ख़त्म हो रही है। आज वही पैगाम हम तुम तक पहुँचा रहे हैं। वो पैगाम जो है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी इख्तियार करने का है। इससे हटके कोई नहीं है। वो कायनात के मालिक हैं, उन्हीं का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम वो तुम्हें दावत दे, पंचाक्षरी मंत्र यही है। तुम्हारे पास जितने भी हिंदुस्तान के अंदर हैं, कोई एक लकीर मारता है, कोई 3 लकीर मारता है, कोई 2 लकीर मारता है, कोई बिंदु लगाया हुआ है। यही तो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तुमने तकसीम कर लिया है। एक ब्राह्मण जो है एक लकीर मार रहा है, अलीफ बना है अल्लाह, कोई त्रिशूल लगाया हुआ है, लिल्ला आ गया, कोई नुक्ता लगाया हुआ है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीम लगा लिया है। और तुम्हारे पास कलमा मौजूद है, तुम जानते हो, जानते बूझते छुपाए हुए हो, उसको अपने दिलों से पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। झगड़े ख़त्म होते हैं, नफरतें ख़त्म होती हैं। वरना क्या हो जाएगा, इस सतयुग के अंदर जो आने वाला इनकलाब है तुम्हारी वेदों में लिखा हुआ है, तुम्हारी कालिज्ञान में लिखा हुआ है। वो लिखा हुआ है रुसिंदवरु रुम्मिखानरु यम्मिखानरु केंपुरुषवरु तांबद मुखरवनु गजपति अश्वपति मेघपति देश देशद तुर्करु श्री वेंकटेश्वरी गुरु कुम्मी साला भंडार होड़ीदारू। कैसे रोकेंगे तुम?
जब सतयुग आरंभ किया है 12 लाख मंत्र पढ़े हो, 12 लाख मंत्र ये पढ़े हो कि यागी आना है धर्म स्थापन करने के लिए, यज्ञ करने वाले, कुर्बान होने वाले, वो कुर्बान होने वाले अब आने वाले हैं, वो कुर्बान होंगे, दीन के नाम पे कुर्बान होंगे। वो दीन का नाम क्या है? दीन इस्लाम है। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, वो सलामती वाला दीन है। वो उतरेंगे तो उस पर कुर्बान होंगे, तुम्हें उस राह हक पे लाने के लिए कुर्बान होंगे, और वाकई तुम उस वक्त राह हक पे आना है ब्राह्मणों। हिंदुस्तान के ब्रह्मज्ञ है तो ब्राह्मण, वो आने वाले ब्राह्मण को पहचान लो, आद्य ब्राह्मण को पहचान लो, जो जिसका प्रकट हो गया है, ज़हूर हो चुका है, वरना तुम्हारी मुक्ति नहीं है। तुमने राम कृष्ण को नहीं पहचाना तो दुष्ट बन गए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मनां सृजमहिं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उस जमाने में वेदों के पढ़ने वाले पंडित मौजूद थे, उन्होंने कंस का साथ दिया, कृष्ण का साथ नहीं दिया, दुष्ट बन गए। उनके साथ युद्ध किया कृष्ण ने, कौरवों को मुकाबला किया, उनको नष्ट भ्रष्ट कर दिया। जब वो कब्जा कर लिए तो बोले कि भगवान बन गए, सोने का स्टैचू बना लिया उनका। सोने के स्टैचू बनाने से कुछ तुम्हें नहीं मिलेगा, बल्कि अधिपति को, हर जमाने के, उस जमाने के मालिक को पहचानो। ये कलयुग है, इसमें कल की अवतार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद है। उस वजूद को मानने से तुम्हें मुक्ति मिलती है, वेदों के पढ़ने से कुछ नहीं मिलता। वेद वाक्यं लघु शास्त्रों प्रतिष्ठिता ध्यान ने वर्तम सर्वदा वर्मितम जपस तपम वर्तम तीर्थम यज्ञो दानम ततेवचा गुरु तत्वम विज्ञाया सर्वम व्यर्थम भवत्। ये तुम्हारे जप और तपस्या, यज्ञ और दान कबूल नहीं होते जब तक के जमाने के मालिक को नहीं पहचानते। और जमाने के मालिक एक ही वजूद है, और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, जिसका तुम्हारी किताबों में जिक्र मौजूद है। उसको मान लेना ही आज मुक्ति है। सारी दुनिया में अमन कायम हो सकता है तो उस वजूद के नाम पे कायम होता है, जिसको तुमने इंतजार किया है। वो क्या है? वो जामिउल बहरैन वजूद है, तमाम नस्ल इंसानी को मरकज पे जमा कर रहा है, एक और नेक बना रहा है, जिसको तुम संगमनाथ कहते हैं। वो संगमनाथ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। उस संगमनाथ को अगर छोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? तुम सारे नरक में जाओगे। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? उत्तर दिक्किंदूर यदु भरतारे दुम मिसाले सुत्तित्तु दिल्ली या दीपांतर दुम मिसाले कत्तल कविदुनु कड़दाटा हो याल दुम मिसाले रिक्तದ ಹೆಣಗಡು ಸುಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲ ದುಮ್ ಮಿಸಾಲೆ ನಾಡನಾಯ ತಿಂದು ದಮ್ಮಾನೆ ತನ್ನಿದಾವು ದುಮ್ ಮಿಸಾಲೆ ಹದ್ದು ಖಾಗಾಗೆ ತಿಂದು ಹಬ್ಬಾವು ಮಾಡ್ಯಾವ ದುಮ್ ಮಿಸಾಲೆ ಅಳವೇನೋ ಹೊಕ್ಕು ಗಿಳಗಡಿ ಮರಿ ಮಾಡಿ ದುಮ್ ಮಿಸಾಲೆ ಎಂತಪ್ಪ ಅಳವಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಹರಿದ ದುಮ್ ಮಿಸಾಲೆ ಈ ಮಾತು ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬವರಿಗೆ ಶ್ವಾನ ಶೋಕರ ಜನ್ಮ ತಪ್ಪದು चंद्र सूर्यरु इरुववरेग नरक तप्पदु। चांद सूरज जब तक बाकी है, जब तक तुम नरक में जलोगे, उस वजूद का इनकार करोगे। ये सब होने वाला है। ब्राह्मणों से मेरी प्रार्थना है, दरखास्त है कि इस बात को समझे, क्योंकि लिखा हुआ है मधु मंत्र व बल्ल सिद्ध पंडितानु चरके चरके कदकुंटु वैदाಳು करे करे ಇಲ್ಲದೆ ಚರ್ಕೆ ಚರ್ಕೆ ಯಂತ್ರ ತಾನು ತಂಗೆ ಬಯಲಾಗಿ ಹೋದಿತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಾನರು ಎಲ್ಲ ಬಯಲಾಗಿ ಹೋದಾರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಪಟ್ಟಣ ದುರ್ತಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಾದು ಕೊಂದಾರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೆದಗಾಡು ಬೆಚ್ಚಾದೆ ಸತ್ತಾರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬಿಸ್ನೂರು ಹೋದಾರು ಮನಿಗಾಡು ಸುಟ್ಟಾರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಯಂತ್ರ ತಾನು ತಂಗೆ ಬಯಲಾಗಿ ಹೋದಿತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮದ್ದು ಮಂತ್ರ ಬಲ್ಲ ಪಂಡಿತಾನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕದ್ಕೊಂಡು ಒಯ್ದಾಳು ಕರಕರ ಇಲ್ಲದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಳ್ಳಿಯ ತಕ್ಕೊಂಡು ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟಾರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬಲ್ಲಿದ ಖಾನರು ಹೊರಡಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಾರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ದೊರೆಗಾಳನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಮರಿಸಿ ಕೊಂದಾರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ये सब होने वाला है, ये सत्य है, ये सच है कि तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है। इस सच को तस्लीम करना है। ये मौका आने न दो। उससे पहले ही वेद प्रकाश जो कहा है कि तमाम दुनिया के ईसाई फारे खलीद को माने या ना माने, भारत वाले जो है अवश्य मान लें कल की अवतार जगत गुरु मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये तमाम दुनिया की ताकतें ख़त्म हो रही हैं। याजूज माजूज कूक विकूक जो है, गाग महागाग जो है, घाग में महाघाग जो है, सब खत्म होकर के एक ही शक्ति, एक ही ताकत दुनिया के अंदर गालिब है। वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हर जगह मशरिक और मगरिब में इसी से नूर होगा। तमाम इंसान एक और नेक बन जाएंगे, और ये इंसान जो है अल्लाह ताला के मुलाकात के लिए मेराज नसीब हो जाएगा, उसका दीदार नसीब होगा। इसको पाना है तो आ जाओ, हमारी दावत को कबूल कर लो, झगड़े ख़त्म करो, वरना कुछ बाकी नहीं रहेगा। तुम्हारे भाई पंडित जो थे शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में मुसलमान हुए, जिनको तुम कश्मीर के अंदर कत्ल कर रहे हो, पंडित तुम्हारे भाई थे।
تمہارے بھائیوں نے کل کی اوتار کو مانا ہے، آج سے 700 سال پہلے مانا ہے، تم اپنے بھائیوں کا اوپر ظلم کر رہے ہو۔ ادھر یہودی اپنے بھائیوں فلسطینیوں پہ ظلم کر رہے ہیں، جو ہے عمر کے زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام قبول کیا، وہ فلسطینین جو ہے وہ بھی یہودی تھے، وہ بھی نصارہ تھے جن پہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ ظلم سے کام نہیں بنے گا، یہ دور، یہ جب بھی زمین و آسمان کا مالک وہ ہے، ایک ہی ہے، تم سب کو ایک کر کے چھوڑے گا۔ فَلْيَعْبُدْ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ اَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اشچکرا، نودوارا، دیوانام، پورے ایودھیا، سب کو ایودھیا کی طرف جانا ہے۔ وہ ایودھیا جو ہے جہاں پر یدھ حرام ہے، جہاں جو مارنا حرام ہے، وہ مکہ مکرمہ ہے، اس کی طرف سجدہ کرنا ہے، ورنہ سب کی گردن توڑی جائے گی۔ وہ مکہ بھی ہے، کوئی آ کر کے دیکھ لے، جیسا ابرہا نے آ کر کے دیکھ لیا۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ وہ ایسے ہی جیسے اس وقت وہ ہاتھیوں کا لشکر لایا، آج ٹیکنالوجی ہے اور یہ ٹیکنالوجی بھی کچھ کام نہیں کرے گی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ ڈسٹرائڈ کرے گا۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم لقاء فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا ذلک جزاؤهم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ یہ انقلاب ہے، اس کو سمجھنا ہے، یہ دنیا کے اندر وہ انقلاب آ گیا ہے، یہ حق کا انقلاب ہے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا۔